Hello friends, this is the second part of MCU 15 India's foreign trade and investments, and do revise all these important questions which I am sharing this, and the very best of luck for the What is the exams. role Best. of Export Promotion Council to promote exports in India? नाउ सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स क्या हैं लाइक दीज आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट exports of few items like tea, jute, rubber, etc. And these are also known as export boards. And इसके जो मेन फंक्शंस हैं और एडवांटेजेस वट एवर यू लाइक, ये सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है. द मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, टू हेल्प implement the incentive schemes which are framed by the government, then to expand the market. That means to implement such policies which can increase the exports, and to strengthen the relations with the foreign countries or foreign traders, and to provide timely information to the Indian exporters about the international market, and to assist them in making export policies, and to assist the exporters to adopt technology and to improve the quality of the products, designs, innovations, like that. So these are the major functions, objectives, advantages of export councils. The next one is नाउ दिस इज़ ऑन एक्सिम पॉलिसी. नाउ यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर है, ये उसी चैप्टर से है. स्टेट द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन एक्सिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी. नाउ द फर्स्ट वन, टू मेक द इंडियन प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, to encourage the Indian exporters and manufacturers to use the latest technology of production, to improve the quality of goods and services which are manufactured in India as per the international standards, to provide market support, research facilities, and all the market international information. मोर और लेस ये सारे पॉइंट्स एक जैसे ही हैं. तो अगर आपको आंसर्स अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि अगर 4-5 क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो यू कैन ईजिली राइट योर आंसर, यू कैन फ्रेम योर आंसर्स. Then to provide financial facilities, financial assistance to the exporters, to provide shipping facilities, to reduce tariffs, duties, so that export में उनको थोड़ा सा ज़्यादा margin हो, profit हो, to reduce the restrictions on import export of goods. Then to establish phase, that is free export zones, special export zones, like that. Then to provide facilities like subsidies or duty drawbacks to the exporters, and to adopt liberalization policy as a major policy in the international trade. The next important question is, what measures can be adopted by India to integrate with the trade with the world? Now इसका आंसर भी आप easily frame कर सकते हैं. Now these measures include, first measure जो actually ये जो economic reforms introduce किया था इंडिया ने 1991 में, ये एक मेजर स्टेप था इंडिया के लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर जहाँ पे इंडिया ने अपने जो जो गेट्स, आई मीन जो डोर्स थे, दे वे आर ऑल ओपन्ड फॉर फॉरेन ट्रेड. And India adopted the policies of liberalization, privatization, and globalization. This is the main object of this economic reforms of 1991. Then export transactions were simplified, communication system was improved, and FDI and domestic investment was encouraged. A lot of special economic zones, EOU, बहुत सारी जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन किए, they were all set up in different parts of India. Then lot of import duties and taxes, they were reduced. A lot of focus was given to innovation and use of latest technology. Then subsidies were provided, and like that. Now what was the impact of this? Now due to this, these economic changes, economic reforms of 1991, it definitely it impacted India very much.
Firstly, it increases the domestic competition as the foreign companies entered into India. Then now the Indian producers, the domestic or indigenous industries, they started using latest technology which could imported from foreign countries. And there was quite a good development of human resource. That means lot of training and professional training centers were set up in India, so that workers can improve their skills. Then it also generated a lot of employment opportunities, and foreign investment flowed into India. Okay, again, what are the salient features of this policy of 1991 or foreign investment policy? Now इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में हाईलाइट कर लेते हैं। जो पहला वाला था, दैट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट सम इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। तो इनको छोड़ने के बाद में जो इंडस्ट्रियल अगर आपको इंडस्ट्रीज बैठानी है, सेटअप करनी है, तो लाइसेंस की ज़रूरत थी अप टू 1991, वो रिमूव कर दिया गया एक्सेप्ट सम 6 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। Foreign direct investment was encouraged. Foreign technology agreements were made so that technology and capital goods were easily imported into India. Disinvestment policy, that means public sectors were converted into private sectors or were given to private individuals. Devaluation of rupee was made up to 18%. Then open general license was given to the importers and exporters. Then the policy of liberalization, globalization and privatization was introduced. This was the major step and the decision made by the Indian government. Then lot of attention was given to the development of small scale industries, cottage industries, handicraft industries and like that. Then there were quite a number of reforms in the banking sectors. A lot of private banks were were allowed to enter into India, like Axis Bank, ICICI Bank, SDFC Bank, like that. Then insurance sectors was reformed, and this IRDA authority or organization was set up to look after this. Okay. The next one is, what is the importance of foreign investment or FDI for India? ये बहुत easy question है, easily इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन से अगर पैसा आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगे, बिकॉज इंडस्ट्रीज कैन बी सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डेवलप्ड एंड दैट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सकता है, मोर एंड मोर स्किलफुल एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड, उसके लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग्स वो सब प्रोवाइड किया जा सकता है। इंडियन कंपनीज कैन यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी and then export growth. That means production can be increased and that leads to surplus production which can be exported to earn foreign exchange. Then Indian market became very competitive because lot of foreign companies entered into India and growth of domestic industries. So बहुत easy points हैं. The next important question, what are the important documents required in international trade? आइदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ये चीज़ें एक ट्रेडर के पास में होनी चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज वो फॉरेन ट्रेड करने में उसको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो एयर बिल, ठीक है, एंड उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, देन बिल ऑफ लेडिंग, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, देन बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस पॉलिसी, पैकिंग लिस्ट एंड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये मेन 8 पॉइंट्स हैं। जैसे एयरवे बिल जो होता है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड दैट प्रूव्स दैट गुड्स हैव बीन अराइव्ड एंड रेडी फॉर शिफ्ट बाय एयर। देन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि वेयर आर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं कौन सी कंट्री में, कहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ है, सो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। देन बिल ऑफ लेडिंग, जो शिपिंग कंपनी इशू करती है टू द कैरियर ऑफ द वेसल, दैट मीन्स टू द शिप, कि इसका जहाँ से पोर्ट ऑफ ओरिजिन एंड पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ तक जाना है गुड्स को। ओके, देन कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, बेसिकली ये होता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में,
जहाँ पे एक से ज़्यादा अगर हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, लाइक ओशियन, रेल, रोडवेज, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जनरली एक्सपोर्टर इशू करता है टू द इम्पोर्टर and for a certain amount of money to be paid by the importer at a future date. Okay. The next question: what measures are taken by the government to export agricultural products? Now यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो जिसके जहाँ पे इंडिया के पास में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दैट मीन्स इंडिया के पास में जो रिसोर्सेस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो स्किल्स हैं, तो ये कुछ एक प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एज वी नो दैट इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड 70% ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर का। प्रमोशन होना, प्रमोट होना इंडिया के डेवलपमेंट को डायरेक्टली रिलेट करता है। तो कुछ एक गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं जो इम्प्रूव करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। उसमें सबसे पहले तो है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, जहाँ पे फार्मर्स लोगों को HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वे आर प्रोवाइडेड थ्रू बैंक्स, लोन फैसिलिटीज, और इवन दे वे आर ट्रेन्ड, एनकरेज्ड टू यूज देम। देन लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज वेयर इंट्रोड्यूस्ड एंड जो जमींदारी सिस्टम था दैट वाज एबोलिश्ड नाउ। देन सम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स आर देयर, लाइक कुछ एक रूरल बैंक्स हैं, नबार्ड्स हैं। तो थ्रू दिस बैंक्स a lot of financial facilities are provided to the farmers. There are support prices for agricultural products that saves farmers from selling their products at a lower price, जहाँ पे वो प्राइस सीलिंग किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। फार्मर्स आर प्रोवाइडेड a lot of subsidies। अगर उनको लॉस होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए दैट मेक्स एन रीएम्बर्समेंट, तो दैट helps farmers to increase their productivity. Then rural employments are provided based on this their skills like embroidery work, weaving, tailoring, all that. तो ये भी farmers लोग कर सकते हैं when there is a non-season. Then exemption of duties. If farmers needs to export their agricultural products, they need not pay any duties. Some strategies to boost agricultural exports. More or less सेम ही है, ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट। ओके, नाउ देखते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। और इंडिया के पास में इसके क्या एडवांटेजेस हैं, वीकनेसेस क्या हैं, एंड व्हाट स्ट्रैटेजीज आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। नाउ कुछ एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, लाइक इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन पूरे वर्ल्ड में, and India has the most skilled and unskilled labor for cotton, textile and garments manufacturing. Then India is the only nation having all the three textile sectors, that is handloom, powerloom and mills. ये तीनों ही अवेलेबल हैं इंडिया के पास में, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। देन इंडियन क्राफ्ट्समैन आर वेरी स्किल्ड एंड क्रिएटिव, पूरे वर्ल्ड में फेमस है इंडियन वीवर्स, टेलर्स। Then India has the ability to fulfill small export orders, that is very unique also. Then government has liberalized lot of policies to improve this. Then कुछ एक weaknesses हैं textile and garments के, like Indian textile industries are highly decentralized. बहुत सारे areas हैं जहाँ पे concentration ज़्यादा है, जहाँ पे only garment का काम होता है, like कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, तिरपुर, एंड अब सारे एरिया में नहीं है, पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। इस या देन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर दे आर यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता है। देन शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर, एंड इंडियन फैब्रिक इज ऑफ लो क्वालिटी एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सम स्ट्रैटेजीज आर देयर by the government to promote Indian textile and ready-made exports. The first one is it provides infrastructure, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। दैन टू रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड कॉटन yarn, and it has also set up state apparel parks
जहाँ पे ओनली एक्सक्लूसिवली गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, समथिंग लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. And more investments are made on textile centers infrastructure than a lot of production centers of sewing machines, so that weavers and tailors can make the best use of them, shortage नहीं हो उसकी sewing machines की. देन कुछ एक डिज़ाइनिंग स्टूडियोज़ एस्टेब्लिश किए गए हैं, सो दैट जहाँ पे वीवर्स लोग या फिर जो कारीगर लोग हैं वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग ले सकते हैं how to manufacture garments. Then training and skillful development through specialized institutes. Okay. इसके बाद में जो नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है, सेक्टर आता है, दैट इज़ हैंडीक्राफ्ट जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री. ये भी बहुत फेमस है इंडिया का. इंडिया एक्सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज हैंडीक्राफ्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज, एंड बेसिकली इंडिया इज़ द लार्जेस्ट in fact, and India has also the largest number of artisans, and it is the major item of exports from India. कुछ एक प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री की, लाइक डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. बाहर से माल आता है, उसके बाद में यहाँ पे जो कारीगर है उसको यूज़ करते हैं. तो टोटली जो जेम्स ज्वेलरी की इंडस्ट्री है दैट डिपेंड्स ऑन द इंपोर्ट्स. एंड देर इज़ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना. चाइना भी बहुत अच्छी जेम्स हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरीज वगैरह बनाती है, तो बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन होता है इंडिया और चाइना के बीच में. दैन इम्बैलेंस ग्रोथ, दैट मीन्स सम एरियाज आर well developed in this, and some parts or some states they don't manufacture any sort of gems jewelry or handicrafts. Traditional technology has been used, lack of training facilities, financial problem, low quality productivity, not good working conditions, wages जो पेमेंट करते हैं वर्कर्स को वो भी काफ़ी कम है, एंड इनफैक्ट टेररिज्म जो जम्मू एंड कश्मीर को लेके यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. तो ये सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. Future prospect and strategies. Raw materials should be imported of good quality at reasonable prices. Then products should be manufactured according to the change in fashion and style in the international standard. Latest technology should be used. Stress should be given to expand the portfolio rather than manufacturing only a single line of jewelry or handicrafts. Then जो बहुत सारे डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे वर्कर्स लोग दे कैन बी ट्रेंड टू मेक डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज. देन ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगाने चाहिए गवर्नमेंट को, एंड फाइनेंशियल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड. ओके, नाउ कम्स टू इंजीनियरिंग गुड्स. नाउ इंजीनियरिंग गुड्स में जो जहाँ पे इंडिया का स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी, अर्थ मूविंग एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी, डीजल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड ट्रांसमिशन लाइन टावर्स. नाउ इंडिया को यहाँ से स्पेशलाइजेशन है, दैट मीन्स ये सारे आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं. ठीक है. नाउ कुछ एक प्रॉब्लम्स है इंजीनियरिंग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को लेके. फर्स्ट वन, इंडियन मशीनरीज आर ओल्ड मॉडल एंड आउटडेटेड, and there is a tough competition from Taiwan, Korea, China, like that, and there are a number of non-tariff barriers which restrict exports. जो foreign export करती हैं तो वहाँ पे जो exporting जो importing country है तो उसके वो actually बहुत सारे barriers use करती है, restrictions होते हैं regarding quality, packaging and all that. तो that act as a hindrance. And there is a recent Gulf problem that has a bad effect on the exports, and most of the African countries have reduced their imports from India due to foreign exchange crisis. And यहाँ पे इंडिया में inadequate infrastructure facilities हैं, that we know. There is a higher cost of production, that also have been explained. Small size manufacturing industries है जिसके लिए high cost of production होता है, economies of scale हो नहीं पाता है, and the exporters they don't have much capital, finance एंड लैक ऑफ एक्सपोर्ट कल्चर. बेसिकली जो भी यहाँ पे बनता है लोग यही सोचते हैं कि इंडिया में लोग यूज़ करें. एंड सम स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स. देयर इज़ ए नीड ऑफ इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी टू प्रमोट exports of engineering goods, and we have to adopt a selective approach, that means selecting some specific goods and services and increasing their production which can improve exports. And there should be
A regular upgradation of technology, marketing facilities should be provided to the exporters. More warehouses need to be set up. Joint venture should be done to acquire raw materials from foreign countries. Foreign investment should be encouraged. Teamwork needs to be given more attention so that smaller units can be converted into bigger units. So like this. Then comes chemical industries. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड एंड थर्ड इन एशिया. एंड जो मेन जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में वो महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, ये मेन स्टेट्स में प्रेजेंट हैं. एंड जो मेन केमिकल प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, दैट इज़ एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, पॉलीमर्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होते हैं. एंड ये कुछ इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से इंपोर्ट करती है, लाइक चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी. एंड इंडिया कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं केमिकल गुड्स को लेके. दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ हाईली स्किल्ड एंड टेक्निकल. सब में मोर और लेस सेम पॉइंट्स हैं. दो चार को अगर लर्न कर लें आप तो ऑब्वियसली यू कैन राइट द रेस्ट वन. easy availability of raw materials, presence of MNC. Then this industry is a very age-old industry in India. एंड यहाँ पे इंडिया का स्ट्रैटेजिकली लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एकदम मिडिल में, एशिया के मिडिल में है, तो चारों तरफ एक्सपोर्ट किया जा सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द इश्यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज. गुड्स को हम इजीली उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ विजिबल, टेंजिबल, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वी कैन फील दैट. लेकिन सर्विसेज को नहीं कर सकते, तो इसकी मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है, बिकॉज सर्विसेज आर इनसेपरेबल. जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसकी सर्विस उससे सेपरेट नहीं हो सकती, राइट. नाउ सर्विसेज में बी हेट्रोजेनियस, like it depends on the moods and the mental condition of the service provider. तो वो हमेशा एक जैसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. सर्विसेज आर intangible, invisible in nature, and you cannot take the ownership as in case of goods. Services are perishable. Once you use the service, that will lapse. ठीक है, ख़त्म हो जाएगी. Then problems of measuring the service. So now that is a problem. Quantitatively हम लोग सर्विस को मेजर नहीं कर सकते. And India's competitive advantages and disadvantages in the export of services. इंडिया से सर्विसेज एक्सपोर्ट तो होती है. कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं. सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज़ पॉपुलेशन. इंडिया के पास में हैवी पॉपुलेशन है, एंड दैट मेक्स इट the largest exporter of services. And India is a huge market for a number of services which provides economic strength and learning capacity to a large number of service sectors. And it has a diversified culture and heritage and tourist destination. तो इसकी वजह से यहाँ पे सर्विस सेक्टर काफ़ी एक्टिव है. कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू वीज़ा पॉलिसी. एंड मेनी सर्विस सेक्टर्स हैव चेंज्ड इनटू कैपिटल इंटेंसिव. ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मशीनरी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे मैन पावर कम हो गया. देन ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही है. देन कंपटीशन है फ्रॉम साउथ कोरिया, ताइवान, एंड द क्वालिटी ऑफ इंडियन सर्विसेज इज़ वेरी पुअर. The next question is a short note on Indo-Asian trade and economic relations. इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो जो आप देख सकते हैं प्रीवियसली मैंने बनाया था. एंड बेसिकली दिस एशियन स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया. And the main vision or motto or object is one vision, one identity, one community. And these were the 5 founding members of ASEAN: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. And let's see the major functions of ASEAN. Now here it provides a platform to resolve disputes and to enhance, to promote relationship
good relation among the nations, and they have also declared this Asian region as nuclear weapon free zone, and India has a very good relationship with this Asian countries, and India has been a very active member of Asian, and India launched its policy in 1992, which is also known as Look East policy or Act East policy. And here India जो main export items to all these Southeast Asian countries from India are fuels, oils, uh, some bituminous substances, ships, boats. Then India also exports quite a lot of things from Southeast Asian countries like chemicals, nuclear reactors, boilers, machinery, so like that. ओके, नाउ देखते हैं सार्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, एंड दिस एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985 इन ढाका, बांग्लादेश, विथ 8 कंट्रीज एज इट्स मेंबर लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, and its headquarters are in Kathmandu, Nepal. The main object is to promote economic growth, social and cultural development of South Asian countries, and it gives a lot of importance to self reliance. That means जो member countries हैं उनको self reliant करना, and it also promotes mutual trust, understanding and cooperation among its members. And जो main 5 principles हैं जिसके ऊपर सार्क अपना काम करता है, दैट इज सॉवरेंसी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ए कंट्री। तो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स: टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन, then to promote and strengthen self-reliance, just now I told you about this, to promote mutual trust, understanding and appreciation of each other's problem, and to promote all these economic, social, cultural, technical and scientific sectors in all the member countries, to strengthen cooperation among the member countries, so like that बहुत सारे हैं जो आप लिख सकते हैं। अगेन इसकी सिग्निफिकेंस ये भी आप देख सकते हैं। देन कुछ एक अचीवमेंट्स हैं, जैसे फ्री ट्रेड एरिया वाज एस्टेब्लिश्ड, देन साफ्टा, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड टू फॉर टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज, देन सेप्टा जो टू प्रमोट ट्रेड अमंग द कंट्रीज, देन वी हैव सैटिस फॉर सर्विसेज, कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश किया गया है फॉर रिसर्च वर्क। ओके, the next question: what is the rationale behind transfer of technology now, and what are the methods through which transfer of technology takes place in TNC, that is transnational corporations? Okay, basically जो मेन जो रैशनल है, जो रीज़न है कि ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र एक कंपनी अपने दूसरे जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उसको क्यों करती है? फर्स्टली, इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, the scientists or engineers to innovate the technology does not have that much of expertise. Then sometimes this commercial use of technology becomes expensive, so they transfer technology. Then developing countries which are technologically backward needs to acquire technology from developed countries for its economic growth, and some research organization and universities and institutes, they also need this transfer of technology. Now these are the different methods through which transfer of technology takes place. First, outright sale of technology. जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप्ड कंट्री अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री को डायरेक्टली सेल कर देती है। सेकंड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वो एक तरीके से रेंट पे देती है, राइट। देन थ्रू फ्रेंचाइजेस टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रांसफर्ड, टेक्नोलॉजी का डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड बहुत ही पॉपुलर मेथड है टू ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में,
for which developing countries generally transfer. ओके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट नोट ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, विच वाज सेट अप इन 1982 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इसके जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं दैट इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, to provide different types of services, advisory, informational, like that, and to do all necessary research and analysis of the international market and pass on to the information to the traders. The next is FEMA, Foreign Exchange Management Act. इसके ऊपर शॉर्ट नोट मिल सकता है आपको. It was set up in 1999 and it contains all regulations and that empowers the Reserve Bank of India to pass regulation and enables the government of India to pass the rules relating to foreign exchange. जो फॉरेन एक्सचेंज के डीलिंग्स होते हैं, रेट डिसाइड होते हैं, तो दैट इज़ डन थ्रू फीमा एंड इट वाज प्रीवियसली नोन एज फेरा बिफोर 1999. एंड बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्ट है दैट इज़ टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया विदाउट एनी लीगल बैरियर्स. ये मेन पॉइंट है. तो लाइक दिस इसके बहुत सारे इसके रोल हैं. देन वी हैव ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबलाइजेशन. ये भी क्वेश्चन मिल सकता है. बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द होल वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू फ्री ट्रेड. दैट मीन्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड पीपल among the nation of the world. And it was basically promoted by WTO, World Trade Organization. And ये globalization is the only platform which promote international trade. इसके जो main roles और advantages हैं that is free trade among the countries and liberalization. That means every country should adopt the policy of liberalization. That means it will remove all the international restrictions on import export and to increase the employment opportunities for the people, to increase the connectivity relations among the countries and interdependence. That is each country should cooperate with one another and should there is a cultural exchange between the countries. Then urbanization, the villages should be converted into urban areas, the standard of living should be improved and there should be outsourcing of the services. Okay, you might get a short note on TRIMS, that is trade related investment measures. And इसके जो main features हैं वो देख लेते हैं TRIMS के. It is only applicable to goods and not services. It does not regulate the entry of foreign industry or investment, and it is about the discriminatory treatment of imported and exported products, and these are applicable to both foreign companies and also the domestic countries. कुछ एक है ट्रिप्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट, वो भी मिल सकता है आपको. दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. एंड बेसिकली दीज आर द एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी राइट्स लाइक न्यू इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी, मेथड्स, एंड द इनोवेटर गेट्स द राइट टू यूज his innovations. Then these agreements are done through this patents and patent rights, which provides protection to the innovator for 10 years. Then trademark, where a name, symbol or word and device, all these combinations are granted to the manufacturer or innovator, and it can be done for 7 years, which can be renewed for indefinite period. Then the innovator can take copyright through this agreement for 50 years. Then some industrial designs are there which are also a part of IPR and TRIPS agreement. Then trade secrets. Now ये भी इनके भी patent device formula अगर कुछ है कोई इंडस्ट्री या कंपनी के पास तो वो भी सीक्रेट रखा जा सकता है. द नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR. इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट मिल सकता है. एंड ट्रिप्स और IPR में इनफैक्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस दोनों एक ही चीज़ हैं, वही सेम कॉपीराइट्स, पैटेंट, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट्स के ऊपर है. लेकिन इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं विच यू शुड रिवाइज. You can also revise this question, a short note on Indo-US relations. Now, India is the largest trading partner of USA, but India export कम करती है, import ज़्यादा करती है US से. So this is one of the problem.
एंड द मेन आइटम जो एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए में, दैट इज़ जेम्स एंड ज्वेलरी, कॉटन, हैंडीक्राफ्ट्स, मेटल, कैश्यूज़। तो इस सारे आइटम्स को आपको याद रखना है। कुछ एक आइटम अमेरिका से इंपोर्ट करती है इंडिया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, स्टोन्स, लाइक दैट। एंड इंडिया के साथ में यूएस का पार्टनरशिप बहुत पुराना है, लॉन्ग, लाइक बायलैटरल रिलेशनशिप इज़ देयर। एंड टाइम टू टाइम इसके अंदर मॉडिफिकेशन, चेंजेस, इम्प्रूवमेंट होते रहे। एंड देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल बिटवीन बोथ द कंट्रीज रिगार्डिंग ट्रेड। एंड इंडिया के साथ में यूरोपियन यूनियन का भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा हुआ है। इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। देन CIS, दैट इज़ कुछ एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक रशिया, यूक्रेन, तजाकिस्तान। तो इनके साथ भी इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, बट नॉट वेरी एक्टिव। जो USSR के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है इंडिया के, तो वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, कुछ जोग्राफिकल रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे। देन इंडिया और जापान के रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोनों के अंदर, दोनों कंट्री के अंदर बहुत ही पुराना, बहुत ही गहरा रिलेशन है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे MCO 15 के, जो आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। एंड डू रिवाइज दिस वेल, एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।